Okay, so we will be starting coordinate geometry in this class. Wait a second. Okay. This is x-axis. This is y-axis. This is x positive. This is x negative. This is y positive. This is y negative. Okay. So for suppose we have a point. So for suppose this is P1, that is point 1. For suppose this is P2, this is P3, and this is P4. So this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay. So we know that P1 should be x positive comma y positive. P2 should be x negative comma y positive. P3 should be x negative comma y negative, and P4 should be x positive y negative. Okay, well, this is the origin point. So we know that this is x units, this is x units, this is y units. Okay, so for suppose if I want to ask you the distance between point and x-axis, so that should be equals to modulus of y. Why is that modulus? Because the answer will always be positive. And similarly, for y-axis, yes, what it will be? What will it be? Yes, class. Yes, class. Class. All of you are taking the class or not? So this should be modulus of x. Okay. So now tell me the distance between the center and the origin. Oh, sorry, origin and the point. So distance between O and P is represented by OP.
and it should be under root x square plus y square, because we are using the Pythagoras theorem. Okay. Okay. Now let us talk about two different points, that is P1 and P2. P1 is x1 y1, P2 is x2 y2, and I need the distance between these 2 points. So this distance should be under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Can we use distance formula used in O-levels? Yes, you can use that. Is anybody having problem till now? Okay. Should I move on? Should I move on? Okay, let me take attendance. Okay. So let us talk about the gradient. Wait. एक सेकंड रुक जाए, वो कॉपी कर रहा हूँ. कर लें. So on x-axis, y is 0, and on y-axis, x is 0. ये तो सबको पता ही होगा. Please give me a minute.
अच्छा जी, ऑन एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होती है। ओके, सो अगर हम बात करें कि हमारे पास मौजूद है जनाब, फॉर सपोज एक्स एक्सिस और मौजूद है जनाब वाई एक्सिस। सो फॉर सपोज अगर कोई लाइन गुजर रही है, so this distance is basically x intercept and this distance is basically y intercept. So this is x comma 0 and this is 0 comma y. Okay, okay, so for x intercept we will always put y is equals to 0, and for y intercept we will always put x equals to 0. Okay, any problem in that? Okay, now talking about the gradient. So for suppose if a man standing here and he starts moving in this direction. So basically he is moving in two directions, this way and that way as well. So basically what is this? Basically this is the run and this is the rise and this is the gradient. Yes, you may say that the formula for the gradient. I'm giving you the concept. While this is theta, the angle. Okay. So gradient is also represented by a small m and it's always rise upon run or minus fall upon run. So this is rise, this is fall. Okay. So we have, if we have a line with point P1 and P2, P1 is x1, y1 and x2, y2. Now the gradient of this line will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. And you may write it like delta y upon delta x, that is change upon y, change in y upon change in x. Okay. Understood till now? And you may write it like tan theta. Okay. So for suppose these are the two lines. बेटा tan इसलिए क्योंकि tan होता है sin upon cos. So for suppose this is line 1, this is line 2. So if line 1 is parallel to line 2,
then their gradients are equal. Okay. So if two lines are parallel, then their gradients are equal. Okay, for suppose we have two lines perpendicular to each other. So if I say that if line 1 is perpendicular to line 2, then M2 is negative 1 upon M1. Or the product of M1 M2 is minus 1. While this point is known as the foot of perpendicular. Understood? Clear till now? This is the normal of the equation. Yes, you can say that that's the normal. Please note it down. सर tan वाला एक्सप्लेन कर दें यार. देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अगर थीटा को देखूं तो ये ऑपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया, तो इसीलिए tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसलिए tan थीटा. बात समझ आ गई जैन? नोट इट डाउन प्लीज. Okay, should I move on? Okay. Equation of line. देखें बेटा, for suppose this is x-axis, this is y-axis.
अब देखिए ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो फॉर सपोज अगर ये ए से कट कर रही है तो एक्स एक्सिस की अपनी इक्वेशन और वाई एक्सिस की अपनी इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की अपनी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और ये होती है एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। एक नजर आसान हो जाए। Okay, so now we have the line which is passing through A units. So why is that? Why was that? Y is equals to zero because it was passing through zero. That's why it was y is equals to zero. So this should be y is equals to a. So I can say line parallel to x axis. इसकी इक्वेशन होगी y is equals to a. अब सिमिलरली ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है. This is y is equals to zero. Oh, sorry. This is x equals to zero. This is y is equals to zero, and that is zero. So for suppose the line is parallel to y axis, so now you know that what will be the equation. So this is to be line parallel to y axis, then this would be x equals to a. Understood?
Any issue? ओके सो अच्छा, अगर हम बात ये करें कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, राइट? ये वाई एक्सिस है। तो जनाब यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं कह रहा हूँ लाइन 1। और ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है जनाब एक अदद वर्टिकल लाइन, इसका मैंने नाम रखा लाइन 2। तो मुझे बताएं लाइन 1 जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली लाइन जो है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। इसी तरीके से अगर मैं आपको लाइन 2 का बताऊं, तो लाइन 2 क्या है? वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन पैरेलल होती है वाई एक्सिस के। तो जनाब जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका जो राइज है वो 0 होता है, और जो पैरेलल होती है वाई एक्सिस के उसका रन 0 होता है। तो अगर इसका राइज 0 है तो इसका ग्रेडियंट 0 है, और अगर इसका रन 0 है तो ये हो जाएगा 1/0, जिसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, और इसको हम इन्फिनिटी से भी कंसिडर करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? Is everybody clear till now? Should I move on? Okay. So for suppose this is x-axis, this is y-axis, and we have a random line.
So this is C, while M is the gradient. So the equation will be y is equals to mx plus c. Okay, y is equals to mx plus c. And for suppose we have this point P1 and this point P2, we can have m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, and using the equation y minus y1 is equal to m x minus x1. Understood? Okay, for suppose आपको इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. So you may rearrange it like minus a upon b x minus c upon b. So you can say that m is basically minus a upon b. Understood? So if the equation is given to you, then you may find out the gradient by using this m is equals to minus a upon b. मैंने ये बताया कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन हो, तो आप उससे ग्रेडियंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस ए अपॉन बी करके. ओके उस्मान. तो जनाब मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला करा दिया, ग्रेडियंट करा दिया, पैरेलल परपेंडिकुलर करा दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस करा दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन करवा दी. ठीक हो गया? कोई बातें ना समझ में आई हो और या कोई पॉइंट रह गया हो तो काइंडली लेट मी नो. अगर किसी ने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो अभी ले लो. ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ जाऊं? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें. आगे बढ़ रहा हूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. तो आगे बढ़ रहा हूं. तक सारी बातें समझ आ गई सबको? ओके नाउ अब वर्कशीट खोल लेते हैं.
अच्छा जी, एक चीज रह गई थी, मिड पॉइंट। तो जनाब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, सबको मालूम ही होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, अच्छा जी। ओके जनाब, अब आ जाते हैं अपने काम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जनाब ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू अंडरवुड। सर आपने ये टॉपिक अभी शुरू करा है या एक्सप्लेनेशन करवा दी? एक्सप्लेनेशन करवा दी है बेटा, वो फिर आप वीडियो से देखना। तो जनाब फाइनली आ जाएगा ये 2 अंडरवुड 2। ओके, अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं b इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अगर b मिड पॉइंट है AD का, b इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इसका मतलब है कि AB और BD हाफ है AD का। क्या ये बात समझ आ गई? और उसके बाद कह रहे हैं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका क्या मतलब है कि BC और CD 1/2 है BD का। क्या ये बात समझ आ गई? अब वो पूछ रहे हैं कि AB अपॉन AC कितना होगा। तो बेसिकली वो कह क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि B मिड पॉइंट है किसका? A का और D का। फिर वो ये कह रहे हैं कि C मिड पॉइंट है B और D का। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये अगर 1/2 है, तो अगर ये 1/2 है, ये 1/4 है, और ये भी 1/4 है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मैंने A और D का मिड पॉइंट ले लिया B। फिर उसके बाद कहा गया मुझे कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मैंने C मिड पॉइंट ले लिया B और D का। क्या ये बात समझ आ गई?
क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। अक्सा समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब अब मुझसे क्या मांगा गया था? मुझसे मांगा गया था ए बी अपॉन ए सी। तो इसका मतलब ए बी जो है वो कितना है? 1/2 है, और ए सी जो है वो 1/2 प्लस 1/4 है। सिंप्लीफाई कर लें 2 थोड़ा आ जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मिड पॉइंट निकालना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। चौथे का आंसर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पर आएगा मॉड एक्स, ऑप्शन ए। वो कह रहे हैं ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। -3/2 को इक्वेट करेंगे हम अभी y2, -9 -6/m -2। उसके बाद जनाब हमको हो जाएगा ये -3m माइनस आएगा 6, और ये हो जाएगा जनाब 30। उसके बाद ये हो जाएगा -3m = 36। Wait a second. The line A has a gradient -3/2 if the points this. तो -9 -6 4 का यस मॉड एक्स होगा। अच्छा जी, यहाँ पर कोई देखो क्या गलती की है मैंने। -3/2 = -15/m + 2। अच्छा जी, यहाँ पर आएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 24 एंड m would be equal to 8। Is that so? -3 -6 -30, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, m = 8 आएगा। ओके, इसकी इक्वेशन मांग रहे हैं। सो जनाब इसका जो राइज है वो 3 है और रन जो है वो 2 है। तो इसका मतलब इसका जो ग्रेडियंट है वो आ गया जनाब 3/2, और इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो है 3, जिसका मतलब है c बराबर है 3 के। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी y = mx + c, हो जाएगा y = -3/2 3/2। ग्रेडियंट है। क्या बेटा? -2 है। रन तो 2 है ना, उसका राइट साइड मूव कर रहा है ना। बेसिकली ग्रेडियंट माइनस में तब होता है जब वो फॉल कर रहा होता है, ये तो राइज कर रहा है ना। -2 कैसे होगा? रन तो कभी भी माइनस में नहीं होता, फॉल होता है या राइज होता है। ये फॉल है, नहीं ये राइज है। राइज होगा तो पॉजिटिव रहेगा सब। बेटा क्या ये बात समझ आ गई है? बेटा क्या ये बात समझ आ गई है? ओके, अच्छा जी, अगर आप और से देखें तो जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं बेसिकली। तो जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के।
ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे जनाब क्या ये बात समझ आ रही सबको कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पहले मैं निकालूंगा जनाब ए सी का मिड पॉइंट। तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? -2 + 5/2 और ये हो जाएगा जनाब 2 + 7/2। और जो कि हमें अननोन है वो हम सपोज कर लेते हैं चौथा वर्टेक्स x, y। ठीक है, तो जनाब ये हो जाएगा 8 + x/2 और जनाब ये हो जाएगा 4 + y/2। तो बाय कंपेयरिंग हमारे पास जो 3 है वो बराबर हो जाएगा 8 + x के, और हमारे पास जो 9 है बराबर हो जाएगा 4 + y के। तो जनाब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। The gradient parallel to x-axis already told you. That should be option C. Okay, the equation of line passing through the point and cuts equal distance from the axis. Put part C दिखा दें for a minute. किसका part C बेटा? अच्छा 7। ठीक है शहजार, ये वापस समझा दें। मैंने ये बताया है कि जब हम रेक्टेंगल को देखते हैं तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली ए और सी और बी और डी इनके जो मिड पॉइंट्स हैं ये बराबर होंगे क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई है? क्योंकि बाइसेक्ट है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जैन, तो इसलिए मिड पॉइंट को यूज किया है। और फिर दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल के इक्वेट कर दिए मैंने। इक्वेट मतलब बराबर रख दिए। हमने अज्यूम कैसे करा? व्हाट इज ए बी एंड सी? यार नॉर्मली दीज आर इन द ऑर्डर ऑलवेज। This should be A, this should be B, this should be C, always. D will be XY, yes, you can assume XY. Because it's unknown, right? Okay? Okay, in question number 9, put point from options and verify. Very easy question. Okay, now question number 10. So the perpendicular gradient is -3/4. So our gradient should be +4/3. And now we will be using y minus y1 is equal to m x minus x x1. Got it? So now I will be putting the values. Y minus 2 is equal to 4/3 into x minus -6
and it should be 3y minus 6 is equals to 4x plus 24, and that should be 4x minus 3y plus 30 is equal to 0. Understood? Okay. चलिए, याद रखें फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि दिस इज ए, this is B, this is C, they all lie on the same line. So remember that gradient of AB is equals to gradient of BC is equal to gradient of AC. Okay, understood this point? इसकी आंसर की is correct which is given after the exercise. इसकी आंसर की तो नहीं दी मैंने. ओ बाय मिस्टेक चली गई आप लोगों को, ये गलत है, ये गलत है, ये बाय मिस्टेक चली गई है आपको. Okay, understood this point? क्या गलत सर? यार इस चैप्टर की आंसर की गलत दे दी है आपको. ओके, मूविंग बैक. ओके, सो हमारे पास जनाब हम थे कोलिनियर पे, तो हम यूज करेंगे जनाब ग्रेडियंट किसका? ए बी का, और इसको इक्वेट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए सी से. तो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा जनाब लेमडा वॉट एवर इट इज minus 1 divided by 2 minus 1, and that should be equal to 5 minus 1 upon 4 minus 1. So that should be lambda plus 1 upon, okay, that should be lambda plus 1 equals to, yes, 6 by 3, that is 2, and now lambda should be equals to 1. Okay, the points this lie on a straight line. Its equation is very easy question, you can do it by yourself. It's option B. Okay, put point and put point in options and verify. Are you getting me? Okay, now the distance. So the distance formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So we know the distance. So now it should be 3 minus 7 whole square. Yes, class, are you getting it or not?
this should be y minus 1 whole square. Squaring on both sides. So squaring on both sides will give me 25 is equals to 4 square is 16 plus y plus 1 whole square. And this should be 9 is equals to y minus 1 whole square, and that should be plus minus 3 is equals to y minus 1, and then 3 is equals to y minus 1, and minus 3 is equals to y minus 1. So it should be y is equals to 4 and y is equals to minus 2. Okay, understood? Understood? Okay, now they are asking that find the point which is equidistant from A. So take P from options. अगर वो इक्विडिस्टेंट पर है तो आप क्या वेरीफाई करेंगे? आप वेरीफाई करेंगे पी ए से पी बी का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा. ए आपको सवाल में दिया हुआ है, बी आपको सवाल में दिया हुआ है, पी आपने ऑप्शंस से लेना है और आपने फिर क्या करना है, आपने पी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है और पी से बी तक का डिस्टेंस निकालना है और चेक करना है कि किस ऑप्शन पे करेक्ट आ रहा है. आर यू गेटिंग मी? ए और बी आपको सवाल में दिया हुआ है, पी आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है. पी से ए और पी से बी डिस्टेंस आप निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है. बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड और नॉट? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ओके, जो आप मेथड इसके अलावा करेंगे उसमें इससे ज्यादा टाइम लगेगा. Moving on to next question. Then the line through this is perpendicular to this. तो जनाब हम यहाँ पर पहले M1 निकाल लेते हैं. M1 है हमारे पास -2 -5 -3 -2 -2 -5 -3 -2, that will be equal to 7/5. ओके, उसके बाद हम निकालेंगे M2. ग्रेडियंट दिया आएगा जनाब 3 minus -1 and upon x minus 4, so that will be equal to 4 upon x minus 4. So क्योंकि उन्होंने कहा है कि ग्रेडियंट लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम करेंगे M2 is equals to -1 upon M2, oh sorry M1. तो इसके अंदर M2 में हम डालेंगे 4 अपॉन x minus 4 और इस इक्वेट कर देंगे -5/7 से. तो उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू 5x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 20 एंड देन हो जाएगा सर ये तो पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर लिखा हुआ बेटा.
ओके शहजाद, लिखा हुआ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सवाल में पैरेलल। क्वेश्चन 17 और 18 बहुत इजी हैं, तरीका समझा दिया है, कर लेंगे आप। 19 भी अभी आपको बताया है, कर लेंगे आप। 20 भी आप कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जनाब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे लाइन की इक्वेशन का, जो कि मैंने आपको बताया था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम x माइनस एक्स वन, और इसमें आप m की जगह पर 0 यूज करेंगे। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल है x एक्सिस के। जनाब इक्वेशन विल बी y। जी बेटा, इक्वेशन के सॉल्यूशंस भेज दूंगा मैं इनके आफ्टर द क्लास। जनाब यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम x माइनस एक्स वन, और उसके बाद हम करेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/5। जाएगा जनाब 4x प्लस 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 20y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 2, और उसके बाद 8x माइनस 20y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ओके, ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले आप m निकालेंगे, y2 माइनस वाई वन। बात समझ आ रही है भाई? कुछ पूछना है हाथ के हाथ पूछ लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझसे फौरन पूछ लें। फिर इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बात समझ आ रही है बेटा सबको? इसलिए मसला है इसमें। इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट एक्स एक्सिस एट -2। तो जनाब आप ए पॉइंट ले लें -2, 0, और बी पॉइंट ले लें 0,5, और उसके बाद बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ओके, 2 पॉइंट ले लें, अब आप बड़े आराम से कर लेंगे इसी तरीके से। पहले आप इनका ग्रेडियंट निकाल लें। ग्रेडियंट आपको निकालना आता है जनाब, हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दैट वुड बी 5/2, और उसके बाद वही फॉर्मूला यूज करना है आपने। बात समझ आ गई है? 25 में भी यही काम करेंगे आप। अच्छा जी, 26 में क्या कह रहा है जनाब? 26 में आपको थीटा दिया हुआ है 45। सो आपको मैंने सिखाया था कि m बराबर होता है tan थीटा के। तो ये हो जाएगा tan 45, और tan 45 बराबर होता है 1 के। तो ये वैल्यूज या तो गिवन होंगी सवाल में आपको, ठीक है, या तो गिवन होंगी आपको सवाल में, या फिर बेसिक वाली याद करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको 2 के बराबर, मतलब c की वैल्यू दी हुई है 2 के बराबर। तो आप इक्वेशन यूज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। बात समझ आ गई है? क्लियर है जनाब? कोई किसी किस्म का इशू? जनाब यहाँ पर भी आप पहले यूज करेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें हो जाएगा जनाब tan 135, ये वैल्यू बराबर होती है -1 के। तो इस तरह के सवालात में आपको गिवन होगी वैल्यू, ठीक है।
28 में पूछ रहे हैं द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द वाई कोऑर्डिनेट when x equals to 0, that is option D. Okay, now they are asking for the intersection point. सर tan के साथ वैल्यूज मेंशन होंगी इन क्वेश्चन, राइट, गिवन होंगी, या फिर आपको बेसिक वाली याद करनी पड़ेंगी? 30, 45, 60 आपको याद करना पड़ेगा, उसका मेथड सिखा दूंगा मैं, परेशान नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं ना बेसिक। अच्छा जी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पुट पॉइंट फ्रॉम ऑप्शंस एंड वेरीफाई। और दूसरा मेथड आपके पास ये है कि सॉल्व द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है जनाब, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूं। बेटा इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। यूनिट ग्रेडियंट का मतलब है कि आपको m जो 1 के बराबर है और ग्रेडियंट होता है जनाब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा जनाब a माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 3। तो ये हो जाएगा जनाब b माइनस a इज इक्वल टू। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं जनाब? एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -3 और 2। और उसके बाद जनाब अगर y निकालना है तो x को 0 पुट कर दें। जनाब y इंटरसेप्ट आ जाएगा -6, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कोई बात पूछनी है तो बता दें। कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछना तो बता दें। सर y फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यूज आउट नहीं कर सकते 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। दैट्स द वे टू सॉल्व इट। दोनों है ना, 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है। समझ आ गई जैन? बेटा जब हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम y को 0 पुट करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक की तो x की 2 वैल्यूज आई ना, वो कह रहे हैं x एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट 2 भी है, x इंटरसेप्ट -3 भी है, y इंटरसेप्ट एक ही आया -6। अंडरस्टूड?
सबको ये टॉपिक समझ में आ गया? सबको ये टॉपिक समझ आ गया है? क्लास, आई एम आस्किंग यू समथिंग। अच्छा, माशाल्लाह से सारे भाग गए हैं। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।